Jai Hind students. Today we will continue with the lesson number 13, manufacturing industry in the 10th standard SS. In previous video we have studied regarding about the agro-based industries and about the mineral-based industries. In this video we will study about the transportation, the equipments of our India and the industrial pollution and remedies for the industrial pollution. So let's start from the transportation equipments. So in our India, area wise, India, that is also very big country, population wise the second number in all over the world, area wise the 7th number in all over the world. So the transportation industries has been established in a very large scale in our India. Road transportation, air transportation, shipbuilding industries, roadways, railways. So these are the big network of all transportation industries in our nation. So let's start from the railway. So in India there is a very big network of the railway, second number in all over the world of the railway network, very big railway network, transportation network of our nation. Passenger as well as the good transportation, in India in a very large scale there is a railway network. सब लोग जो पैसेंजर्स जो है गुड्स है वो रेलवे को सबसे ज्यादा प्रीफर्ड करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस के लिए. नॉर्थ टू साउथ इंडिया का जो डिस्टेंस है और ईस्ट वेस्ट जो हमारा जो डिस्टेंस है 2933 किलोमीटर एंड 3000 अप्रोक्सीमेटली किलोमीटर देयर इज अ डिस्टेंस. तो ये डिस्टेंस को तय करने के लिए सब लोग रेलवे को ज्यादा प्रीफर करते हैं. सो दैट्स व्हाई देयर इज अ बिग रेलवे नेटवर्क एस्टैब्लिश्ड इन आवर नेशंस. रेलवे में अगर इंजन की बात करें तो देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ द इंजन इन द रेलवे. एक है स्टीम इंजन, एक है डीजल इंजन और एक है इलेक्ट्रिक इंजन. स्टीम इंजन आप लोग जानते हो कि स्टीम इंजन जब रेलवे का आविष्कार हुआ था तो स्टीम इंजन से और उससे कोल से वो सबसे चलते थे, लेकिन धीरे धीरे अभी ये सिर्फ हेरिटेज बन के रह गई ये इंजन जो है स्टीम इंजन. अब ज्यादा हमारे देश के अंदर डीजल एज वेल एज द इलेक्ट्रिक ये जो इंजन है वो सबसे ज्यादा हमारे देश के अंदर चलते हैं. तो इंजन बनाने का जो बिजनेस, इंजन बनाने का जो इंडस्ट्रीज है दैट इज एस्टैब्लिश्ड इन अवर नेशंस in the Chitranjan's locomotive works in West Bengal, diesel locomotive works at the Varanasi, and the Tata locomotive works at the Jamshedpur. So these are the 3 that is about the place in our India for the manufacturing of the engine, the railway engine in our nations. So passenger coaches are also manufactured in our nation at the Perambur, Bangalore, Kapurthala and Kolkata. So these are the places, the centers in our India where the railway engine and the railway coaches are the manufactured in our nation. Next is regarding about the road vehicles. Road vehicles are also very large scale big industries in our nation. शुरुआत में जब आफ्टर इंडिपेंडेंस हम हमारे देश के अंदर इतना जो रोडवे के जो ट्रांसपोर्टेशन जो व्हीकल्स है 4 व्हीलर 2 व्हीलर इतना मैन्युफैक्चरिंग नहीं था. हम बाहर से जो स्पेयर पार्ट जो इंपोर्ट करते थे और हमारे देश के अंदर उसको असेंबल करते थे. लेकिन धीरे धीरे हमारे देश के अंदर भी बहुत सारे जो अलग अलग कार्स और 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स का मैन्युफैक्चरिंग आज हब हमारे देश के अंदर धीरे धीरे बन रहा है. सो देयर इज ऑल्सो वेरी लार्ज सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर एज वेल एज द पब्लिक सेक्टर. तो हमारे देश के अंदर रोड व्हीकल्स का एक बहुत ही बड़ा नेटवर्क है. इन ऑल ओवर द वर्ल्ड प्राइवेट सेक्टर इंडिया रैंक्स द 5th इन ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द कॉमर्शियल व्हीकल्स इन आवर द इंडिया. भारत के अंदर 5th नंबर है पूरे वर्ल्ड के अंदर जो रोड व्हीकल्स, जो कॉमर्शियल रोड व्हीकल्स का उत्पादन के अंदर. हमारे देश के अंदर सबसे ज्यादा दुनिया के सबसे ज्यादा ट्रैक्टर्स और साइकिल्स वो भी हमारे देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग होते हैं. सो दीज आर रिगार्डिंग अबाउट द रोड व्हीकल्स. वी आर ऑल्सो transport, we are also the export some parts and export also the vehicles in all over the world. Next is about the shipbuilding industries. These industries, the India has very ancient industries. आप लोग जानते हो कि shipbuilding जो industries है वो भारत की एक बहुत ही एक पुरानी प्राचीन एक industries है. हमने पढ़ा था कि भाई लुथल के अंदर जो लुथल था वो बहुत ही बड़ा डॉकयार्ड था और वहां पे बड़े बड़े जो शिप्स
वहां पे आते थे, पोर्ट था वहां पे। तो शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज इन इंडिया इज ऑल्सो वेरी डेवलप्ड, पब्लिक सेक्टर एज वेल एज द प्राइवेट सेक्टर। तो विशाखापट्टनम, कोलकाता, कोची, मुंबई, मार्मागोवा, which are in the public sector. Kochi and Visakhapatnam, the shipbuilding in the large scale industries develop in our nation. Private dockyards fulfill the local needs also. जो प्राइवेट जो शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज है, प्राइवेट जो डॉकयार्ड्स है, वो देश की लोकल जरूरियातों को भी पूरी करते हैं। एयरक्राफ्ट में अगर साथ साथ में इसमें देख ले, दैट इज इन द एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। तो भारत के अंदर हमने हेलीकॉप्टर्स बनाए, ध्रुव हेलीकॉप्टर बनाया, तेजस फाइटर प्लेन हमने बनाया अपना स्वदेशी। हम पैसेंजर प्लेन के अंदर अभी फिलहाल हमारे देश के अंदर इतना मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, धीरे 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 हम एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के अंदर हम डेवलप कर रहे हैं। तो एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश्ड एट द बेंगलुरु, कोरापुट, नासिक, हैदराबाद एंड लखनऊ। सो दीज आर रिगार्डिंग अबाउट द एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज ऑफ आवर नेशंस। Next is about the electronic industries. Electronic industries, we can say that is today's in the communications era. In the communication, it is a very prominent place of the electronic industries. That is the electronic industries in our nation. So in the 1905, the technology electronic industry is established in our nation in 1905 in our India. And it can be said to be the beginning of the electronic industries in India, that is a Bharat Electronics Limited, BEL, जो उसका भारत के अंदर एस्टैब्लिशमेंट हुआ ये 1956 के अंदर इन बेंगलुरु, which is the motive of the manufacturing equipments of for the आकाशवाणी and for the weather department. तो ये जो भारत के जो ये रेडियो का जो आकाशवाणी जो प्रोग्राम हमारा चलता है और वेदर डिपार्टमेंट, तो वहां से बराबर ये जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज जो है उसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ, शुरुआत हुई 1956 में से। टुडे इज प्रोड्यूस द वेरियस इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स इन द कोलैबोरेशन विद द इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है इसरो। इसरो के माध्यम से हम ये इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत ही बड़ा जो थे वो डेवलपमेंट अभी कर रहे हैं। भारत के अंदर इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज जो है बेंगलुरु के अंदर बहुत ही डेवलप हुई। देयर इज अ manufacturing a very large scale in the Bengaluru. So we can say the Bengaluru is capital of the electronic industries. We can say also the Bengaluru is the Silicon Valley of India. जो अमेरिका के अंदर सिलिकॉन वैली है, जहां पे इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज का हब है, तो भारत के अंदर अगर इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज का अगर कोई हब गिना जाए तो दैट इज द बेंगलुरु। सो दिस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज। Now next, the two topics of the lesson, the remaining two topics of the lesson, industrial pollution and remedies to curb the environment degradation. ये सारे जो हमने जितने भी इंडस्ट्रीज हमने पढ़े, these all are industries. ये सारे जो इंडस्ट्रीज है उसकी वजह से 3-4 प्रकार के जो पॉल्यूशन है वो होते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर और हमारे जैसे देश के अंदर डेवलपिंग नेशंस लाइक इंडिया। तो ये जो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, इंडस्ट्री, बिकॉज ऑफ दिस इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स आर क्रिएटेड बिकॉज ऑफ दिस इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। इंडस्ट्रीज पॉल्यूशन 4 प्रकार के होते हैं, एक है वाटर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन एंड लैंड पॉल्यूशन। ये सारे इंडस्ट्रीज आर नेसेसिटी ऑफ टुडेज वर्ल्ड। इंडस्ट्रीज आर वेरी डिमांड इन टुडेज वर्ल्ड ऑफ मॉडर्न एरा फॉर द डेवलप्ड नेशन। दुनिया को, भारत को अगर डेवलप बनाना है तो इंडस्ट्रीज बहुत जरूरी है, लेकिन साथ साथ में एनवायरनमेंट का भी ख्याल रखना बहुत ही जरूरी है। एनवायरनमेंट का जो डिग्रेडेशन हो रहा है, उसका जो अधःपतन हो रहा है, लैंड का डिग्रेडेशन, वाटर का डिग्रेडेशन, नॉइज पॉल्यूशन हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, तो एयर पॉल्यूशन हो रहा है। तो ये सारी इंडस्ट्रीज से 4 प्रकार के जो मेन पॉल्यूशन है वो भारत के अंदर वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं कि आप लोग देख सकते हो भाई हर विंटर के सीजन में पॉल्यूशन लेवल बढ़ जाता है। कि अगर देखा जाए दिल्ली का, अहमदाबाद का, मुंबई का, बड़े बड़े जो हमारे मेगा सिटी है उसका पॉल्यूशन जो लेवल है वो इंक्रीज ही होता है। उसका जो आज हमारी जो हवा है वो सांस लेने के लायक नहीं बची है। तो दिस दैट टाइप्स ऑफ दैट इज द प्रॉब्लम क्रिएटेड बिकॉज ऑफ दिस इंडस्ट्रीज। तो 4 पॉल्यूशन 8 स्टैंडर्ड में हमने डिटेल में पढ़ा था कि एयर पॉल्यूशन ये इंडस्ट्रीज जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है उसके अंदर से जो हार्मफुल गैसेस जो एयर के अंदर जो मिक्स होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड,
sulfur. तो these all are that is a very harmful gases for environment and for the human beings. वाटर पॉल्यूशन, इंडस्ट्रीज का जो केमिकल वाटर्स है वो रिलीज करते हैं नदी के अंदर, स्ट्रीम्स के अंदर, गल्फ के अंदर, वाटर बॉडीज के अंदर, जिसकी वजह से हार्मफुल एक्वेटिक एनिमल्स को भी नुकसान है और जो भी पीता है, इंसान से लेकर सब लोग, तो उससे बहुत प्रभावित होते हैं. दैट इज वाटर पॉल्यूशन. लैंड पॉल्यूशन, प्लास्टिक ले लो या कोई भी प्रकार का जो केमिकल्स है, या तो हवा में जहरीले जो गैस है वो धीरे 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 डाउन होके सेटल डाउन होते अर्थ के ऊपर. और ये लैंड पॉल्यूशन जो खेतों के अंदर हम दवाई जो केमिकल फर्टिलाइजर से स्प्रेड करते हैं, तो ये सारे जो लैंड पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन होता है, इंडस्ट्रियल जो है पॉल्यूशन होता है और एनवायरमेंट का डिग्रेडेशन होता है, लैंड डिग्रेडेशन होता है. क्वालिटी ऑफ द लैंड, quality of the water and the quality of the air is degraded because of these types of the pollution, these types of the manufacturing that is a hub in our nation. So it is a very big problem. दोनों ही हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमने पढ़ा था. सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब एक ऐसा डेवलपमेंट के डेवलपमेंट भी हो, रोड, रास्ते, व्हीकल्स, इंडस्ट्रीज, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ, these all are the development as well as the environment development. That is called the sustainable development. जैसे हमने पढ़ा था कि आपको अगर एग्जाम के अंदर अच्छे मार्क्स लाने हैं तो सिर्फ एक दो सब्जेक्ट में मेहनत करोगे तो अच्छे मार्क्स, आपके अच्छे परसेंटेज नहीं आएंगे. आपको ओवरऑल अगर अच्छे परसेंटेज लाने हैं तो यू हैव टू फोकस इन एवरी सब्जेक्ट, इन एवरी same hard work and the same importance give to the every subject for getting the more and the good marks in your examination. तो ऐसे ही हमको अगर दुनिया को HDI में हमको आगे ले जाना है, हमारे देश को दुनिया के अंदर HDI में आगे लेना है, हमारे देश को डेवलप्ड करना है, तो ऑल ओवर डेवलपमेंट चाहिए. सिर्फ इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर, पर्टिकुलर एक क्षेत्र के अंदर सिर्फ हम डेवलप करेंगे तो बाकी के जो क्षेत्र है जिसकी वजह से हमारा डिग्रेडेशन रहेगा ही रहेगा. तो नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द रेमेडीज टू कप द एनवायरमेंट डिग्रेडेशन. तो कौन से रेमेडीज है, कौन से ऐसे इलाज है, कौन से ऐसे उपचार है जो करने चाहिए जो एनवायरमेंट डिग्रेडेशन को. तो एयर पॉल्यूशन, इंडस्ट्रीज के रूल्स एंड रेगुलेशन, वी हैव टू मेक अ वेरी स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द इंडस्ट्रीज के जो हार्मफुल गैसेस है, वहां पे स्क्रबर्स है, प्यूरिफायर्स है, पर्सिपिरेटर्स है. दीज ऑल आर द अरेंजमेंट शुड बी नेसेसरी फॉर द इंडस्ट्रीज. जो वाटर जो पॉल्यूशन होता है, जो हार्मफुल जो वाटर वो लोग रिलीज करते हैं इंडस्ट्रियल, आफ्टर ऑल वो हमारे यूज के लिए है, इसलिए आफ्टर ऑल घूम फिर पे हमारे ऊपर ही आता है. ऐसा नहीं भाई हम पॉल्यूशन नहीं करते, आप मैं सब में इसमें कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं. तो ज्यादा से ज्यादा हमको ट्रीज उगाने चाहिए, हमको मिनिमम जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो आइटम्स है, एसी, उसका जो है वो मिनिमम हम उसका यूज करना चाहिए, क्योंकि उससे भी जो है वो पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन होता है. वाटर पॉल्यूशन को कम करने के लिए जो भी केमिकल्स है, जो भी इंडस्ट्रीज एरिया है, वो लोग जब केमिकल्स डंप करते हैं, जब रिलीज करते हैं, तो हार्मफुल गैसेस को उसके अंदर से उनको निकाल देना चाहिए. हमको भी वाटर का बहुत ही, हमने लेसन नंबर 11 में हमने पढ़ा कि वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल, सेकंड थिंग्स आफ्टर द एयर. तो वाटर को भी हमको बचाना चाहिए, उसको स्पैरिंगली उसका यूज करना चाहिए, उसका हमको बहुत ही इकोनॉमिकली यूज करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए. उसका पॉल्यूशन जो हमसे बन सके, एक नॉर्मल सिटीजन के तालाब को, नदी, नाले, तालाब को हमको गंदा नहीं करना चाहिए. इंडस्ट्रियल जो ऑनर्स है उनको भी ध्यान रखना चाहिए कि वो केमिकल्स वाटर जब भी रिलीज करते हैं तो उसके अंदर से हार्मफुल जो केमिकल्स है, जो पॉल्यूटेंट्स है, उसको अंदर से निकाल देना चाहिए. नॉइज पॉल्यूशन कम से कम, जैसे इंडस्ट्रियल के अंदर तो अभी जैसे ऐसे जो ओल्ड मशीनरीज को मतलब ये एक्सचेंज कर देना चाहिए, न्यू मशीनरी से स्टार्ट करने चाहिए. अपने व्हीकल्स के अंदर पीयूसी लगाने चाहिए. हम जितने भी हो सके उतना कम आवाज के अंदर जो रेडियो, टेलीफोन, हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम को यूज करना चाहिए. हो सके तो हैंड्स फ्री लगाकर, ईयरफोन लगाकर हम म्यूजिक हम सुने. अपने घर के अंदर जब भी म्यूजिक सिस्टम बजाए वो धीरे से बजाए. क्रैकर्स जो है वो लिमिट में, या तो उसको अवॉइड करे. सो दीज ऑल आर, दैट इज द सॉल्यूशन, रेमेडीज फॉर
different types of the pollution. So noise pollution, land pollution, water pollution and air pollution. These are four. That is the main pollution of our nation in all over the world also. तो उसको हमारे देश के अंदर, because we are a second populous country in the all over the world, so we have to take more care for to remedies to curb this kind of the pollution. So here the lesson number 13 manufacturing industries is over. देखा जाए तो ये लेसन को अगर हम चार पार्ट में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं. पहला है दैट इज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, सेकंड नंबर दैट इज अ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, थर्ड नंबर दैट इज अ ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट्स, एंड द फोर्थ नंबर दैट इज अ इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड द रेमेडीज टू कर्ब द इंडस्ट्रियल pollution. So here the lesson number 13 manufacturing industries is over. I hope that you have understood all this topic of this lesson very well. We will meet in our next video with the next new lesson of the 10th standard SS. Jai Hind.